یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ آپ نے یہ بول سنے ہوں گے۔ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ آج کل کی دنیا میں بہت کم ناطے، رشتے اور دوستیاں باقی ہیں جن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعی جب اجنبی دھوکہ دیتا ہے تو برا لگتا ہے، لیکن جب دوست دھوکہ دیتا ہے تو دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ آج کی سچی کہانی ایک نوجوان لڑکے کی ہے جو ایک مخلص کامیاب انسان تھا، لیکن افسوس اس نے دوستی کا ہاتھ سنگ دل لوگوں کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ ہے گگن دیپ سنگھ کی کہانی۔ قصہ انگلینڈ کا ہے، ساؤتھ لندن کے بیکسلی ہیتھ علاقے کا۔ گگن دیپ سنگھ کی پیدائش سن 1988 میں ایک پنجابی سکھ گھرانے میں ہوئی۔ ماں تجندر اور باپ چرنجیت کی پہلی اولاد۔ گگن دیپ کو پیار سے سب چاہنے والے گگن پکارتے تھے۔ وہ ایک شرارتی، ہوشیار اور ذہین بچہ تھا۔ سن 1991 گھر میں چھوٹی بہن امن دیپ نے قدم رکھے اور 3 سالہ گگن اسی دن سے بہن کا محافظ اور کھیل میں ساتھی بن گیا۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن لڑتے جھگڑتے بھی بہت تھے۔ چرنجیت اور تاجندر نے انگلینڈ میں آتے ہی ایک کامیاب امپلائمنٹ ایجنسی قائم کی تھی جس میں ان کے 300 سے زیادہ ملازمین تھے۔ چونکہ اسکول کے بعد بچوں کو دیکھنے کے لیے کوئی گھر پر نہیں ہوتا تھا، والدین بچوں کو اپنے آفس لے جاتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں گگن دیپ آفس کا کمپیوٹر استعمال کر کے والدین کی مدد کرنے لگا اور کاروبار چلانے کا طریقہ آہستہ آہستہ سیکھنے لگا۔ جب گگن دیپ 17 سال کا تھا، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں انڈیا جاتا ہے۔ وہاں رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر اسے سکھ دھرما سے لگاؤ ہوا۔ اس نے امرت دھاری یعنی بیپٹائز ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہر بیپٹائز سکھ کی طرح وہ 5 چیزوں کا اہتمام کرنے لگا۔ 5 چیزیں جنہیں پنجابی میں پنج ککار کہا جاتا ہے۔ 1. کیس، بال نہیں کاٹ کے پگڑی پہننا۔ 2. کنگا، چھوٹی لکڑی کی کنگھی رکھنا۔ 3. کڑا، سٹیل یا آئرن کا کڑا پہننا۔ 4. کرپان، ایک خنجر رکھنا۔ 5. کچیرا، ایک خاص انڈرویئر پہننا۔ ہندوستان کے اس سفر کے بعد سکھ مذہب گگن کے لیے سب کچھ بن گیا۔ سن 2009 میں ایک اور انڈیا کے سفر نے گگن اور اس کے خاندان والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس دفعہ صرف چرنجیت انڈیا گیا تھا۔ UK میں رہتے ہوئے چرنجیت نے ایک اکاؤنٹنٹ دوست کو پیسے بھیجا کر انڈیا میں کئی پراپرٹیز خریدی تھی، لیکن 1 سال سے اسے شک ہونے لگا تھا کہ یہ دوست دھوکے باز ہے۔ انڈیا پہنچ کر چرنجیت کو پتہ چلا کہ اکاؤنٹنٹ نے کاغذات پر چرنجیت کا نام لکھنے کے بجائے زمینات اور بلڈنگز اپنے نام پر خرید لی تھی۔ پولیس اور مقدمے سے بچنے کے لیے اکاؤنٹنٹ دوست نے ایک قاتل کو پیسے کھلائے اور چرنجیت کو گولی مار کر ہلاک کروا دیا۔ باپ کا سایہ بچوں کے سر سے ہٹ گیا۔ قتل کی خبر سنتے ہی تاجندر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ چند ہفتے ہسپتال میں ایڈمٹ رہی اور مہینوں تک اس کا علاج چلتا رہا۔ گگن دیپ کو اپنے غم کو برداشت کرتے ہوئے سب کچھ سنبھالنا پڑا۔ ماں کی بیماری، چھوٹی غمگین بہن اور خاندانی کاروبار۔ کم عمری میں گگن پر بہت ساری ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن اس نے بخوبی سے ہر آزمائش کا سامنا کیا۔
गगनदीप दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। गुरुद्वारे में वॉलंटियर की हैसियत से लोगों की खिदमत करना, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाना, गगन अपनी बरादरी के लोगों का ख़ास ख्याल भी रखता था। जब उसके एक हरविंदर शोकर नामी दोस्त ने उससे कहा, मैं इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन पगड़ी और दाढ़ी की वजह से कोई नौकरी नहीं मिलती। गगनदीप ने हरविंदर को जॉब अपनी ही ऑफिस में दिलवाई और दोनों लड़कों की दोस्ती और भी पक्की हो गई। हरविंदर और गगनदीप एक दूसरे के घर पर अक्सर आया जाया करते थे। वो सिर्फ दोस्त नहीं, भाइयों की तरह रहते थे। गगनदीप का कारोबार तरक्की पर तरक्की करता रहा। फैमिली की कंपनी चलाते हुए गगन ने सैटेलाइट टेलीविजन का चैनल भी खोला, जिसका नाम उसने सिख टीवी रखा। वो ब्रिटिश सिख स्टूडेंट फेडरेशन का बुनियादी मेंबर भी था। ये कहना गलत नहीं है कि गगनदीप ने जिस चीज को छुआ वो सोना बन गई। अगस्त 2009, 19 साला गगनदीप गुरुद्वारे में था कि उसकी नज़र एक 18 साल की खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, मगर गगनदीप को उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लड़की का नाम मुंदिल माहिल था। मुंदिल एक मजहबी मिडिल क्लास सिख खानदान की सबसे छोटी बेटी थी। वालिदैन एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल के मालिक थे। बड़ी बहन डॉक्टर थी। एक भाई पुलिस ऑफिसर और दूसरा मेडिकल स्कूल का स्टूडेंट। मुंदिल एक पढ़ाकू लड़की थी जिसका बड़ी बहन की तरह डॉक्टर बनने का ख्वाब था। उसकी बहुत मिलनसार और जॉली किस्म की शख्सियत थी और उसके बेशुमार दोस्त थे। वो गर्ल्स ओनली स्कूल जाती थी और उसे लड़कों से बातचीत करना मना था। जब भी किसी पार्टी में जाना होता था तो वो माँ बाप से झूठ बोलकर इजाज़त लेती थी। कहती थी कि पार्टी में लड़के बिल्कुल नहीं होंगे, तभी उसे वालिदैन पार्टी में जाने की इजाज़त देते थे। पहली मुलाकात के बाद गगनदीप घर जाकर मुंदिल को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। मुंदिल जब फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है तो वो गौर करती है कि गगनदीप की दोस्तों की लिस्ट में हरविंदर शोकर का नाम था। हरविंदर मुंदिल का बचपन का दोस्त था। हरविंदर गगनदीप की खूब तारीफ करता है, कहता है कि वो शरीफ, सुलझा हुआ लड़का है, एतबार के काबिल है। और इस तरह गगनदीप और मुंदिल की दोस्ती शुरू हो जाती है। क्योंकि गगनदीप के बाप का इंतकाल उन्हीं दिनों में हुआ था, तो वो अक्सर मुंदिल से बात करके अपना दिल हल्का कर लिया करता था। बातों बातों में, छोटी मुलाकातों में गगनदीप को मुंदिल से प्यार हो जाता है। वो अपनी माँ तजिंदर से मुंदिल का जिक्र करता है और माँ परेशान होकर उसे कहती है, इस लड़की से दूर रहो। दिन में ये गुरुद्वारा जाती है और शाम में वो क्लब्स और पब्स की सैर करती है। ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं, इसके साथ वक्त ज़ाया मत करो। प्यार के मामले में दिल दिमाग से अक्सर बाजी जीत लेता है। गगनदीप ने माँ की एक नहीं सुनी, कहा आप उसे नहीं जानती हैं, वो एक अच्छी लड़की है, बस मुझे पसंद है। अगरचे मुंदिल गगनदीप को अच्छा दोस्त मानती थी, वो उसके साथ इस किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अगस्त 2010 की एक रात को गगनदीप से रहा नहीं गया। मुंदिल ब्राइटन नामी शहर में यूनिवर्सिटी के करीब 2 लड़कियों के साथ एक किराए के फ्लैट में रहा करती थी। मुंदिल उस रात को एक अहम एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और उसकी दोनों सहेलियां घर पर मौजूद नहीं थीं। अचानक गगनदीप वहां बिन बुलाए पहुंचता है, हाथ में फूल लिए, मुंदिल को एग्ज़ाम के लिए गुड लक कहने। जब रात हो जाती है वो मुंदिल से कहता है कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स फेल हो गई हैं और क्या वो फ्लैट में रात गुजार सकता है। वो उस पर तरस खाकर सोफे पर सोने की इजाज़त देती है। बीच रात में गगनदीप मुंदिल के कमरे में दाखिल होकर उससे अपने साथ जिनसी ताल्लुक़ करने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। मुंदिल उसे थप्पड़ मारती है और धक्का देकर कमरे से निकालती है। गगनदीप फौरन शर्मिंदा होता है, रोते हुए मुंदिल से माफ़ी मांगता है। मुंदिल उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। कई दिनों तक
वो मुंदिल को लगातार फ़ोन करता है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है, माफ़ी मांगता है, कहता है कि एक मौका और दो, एक बार मुझसे मिल लो, बात साफ कर लो। लेकिन मुंदिल उससे हर ताल्लुक तोड़ देती है। आप और मैं इस बात पर राज़ी होंगे कि मुंदिल ने बिल्कुल सही किया। उसने तो साफ साफ गगनदीप को कहा भी था कि वो उसे सिर्फ दोस्त मानती है। दोस्तों को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। बहरहाल वक्त गुजर जाता है, गगनदीप अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। कारोबार में तरक्की करते हुए वो 21 साल की उम्र में करोड़पति बन गया था। मुंदिल के साथ बदतमीजी के वाक़े के 8 माह बाद गगनदीप को मुंदिल का टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे अपने फ्लैट पर बातचीत करने के लिए बुला रही होती है। अगरचे वो दोस्ती को दोबारा शुरू करना चाहता था, उसे फिर भी मुंदिल के इरादों पर शक था। गगनदीप मुंदिल को ये टेक्स्ट मैसेज भेजता है, कैन वी टॉक सिविल और डू यू जस्ट वांट मी डेड? क्या हम तमीज़ से बात कर सकते हैं या तुम सिर्फ मुझे मारना चाहती हो? गगनदीप को क्या मालूम था कि उसके मजाकिया जुमले में कितना सच छुपा होगा। 25 फरवरी 2011 शाम के 7 बजे गगनदीप अपनी माँ और बहन को बताता है कि उसे किसी पार्टी में जाना है। वो माँ को गले लगाकर कहता है, मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे देर हो जाएगी, क्योंकि उसकी BMW मैकेनिक शॉप पर खड़ी थी। गगन अपनी बहन से पूछता है कि क्या वो उसकी नीली मर्सिडीज उधार ले सकता है। अमनदीप उसे गाड़ी की चाबी दे देती है। 26 फरवरी 2011 रात के 2 बजे एक पुलिस कार ब्लैक हीथ के इलाके की पेट्रोल कर रही थी कि पुलिस ऑफिसर्स को धुआं और बुलंद शोले दूर से दिखाई देते हैं। वो तहकीकात के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें एंगरस्टीन लेन नामी गली में एक गाड़ी भड़कती हुई आग में जलती हुई नजर आती है। लंदन फायर ब्रिगेड को फौरन बुलाया जाता है और आग बुझाई जाती है। गाड़ी एक मर्सिडीज थी और खाली थी, ना कोई ड्राइवर सीट में था ना पैसेंजर सीट में। डिटेक्टिव्स गाड़ी की तलाशी लेते हैं और जब वो डिग्गी खोलते हैं तो उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर डेमियन अलेन और उसकी टीम को आग की तहकीकात के लिए बुलाया जाता है। गाड़ी जली हुई थी लेकिन पूरी तरह से नहीं। लाश साइड पर लेटी हुई थी, फीटल पोजीशन में, कुछ इस तरह। उस पर कोई चादर या कपड़ा पड़ा था। हाथ और पांव प्लास्टिक जिप टाई से बंधे हुए थे। मुजरिम समझते हैं कि आग के जरिए लाश जला दी जाए तो वो बिल्कुल राख राख हो जाती है, कुछ बचेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान का जिस्म 60% से ज़्यादा पानी से बना होता है और उसे जलाना आसान नहीं, मगर आग की वजह से बहुत सारे एविडेंस तबाह हो जाते हैं, जैसे कातिल के फिंगरप्रिंट्स, खाल, बाल या किसी भी किस्म का DNA। अलबत्ता डिटेक्टिव्स के पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था और वो गाड़ी के मालिक और उसका पता निकाल लेते हैं। घर सिर्फ 7 मील दूर बैक्सली हीथ इलाके में था। रात के 4 बजे डिटेक्टिव्स घर की घंटी बजाते हैं और अमनदीप उठकर दरवाज़ा खोलती है। डिटेक्टिव्स अमनदीप को बताते हैं कि उसकी गाड़ी जली हुई मिली है और गाड़ी की डिग्गी से एक लाश बरामद हुई है। अभी लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन ये सवाल ज़रूरी था। पुलिस अमनदीप से पूछती है, गगनदीप कहाँ है? वो बताती है कि भाई पार्टी में गया है। अमनदीप भाई को फ़ोन करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। अब तो तजिंदर भी दरवाजे पर आ गई थी। वो बेटी को कहती है कि गगनदीप के दोस्तों को फ़ोन करो। सबसे पहले वो हरविंदर शोकर को फ़ोन करती है और भाई का हाल पूछती है। हरविंदर हंस पड़ता है। अमनदीप बड़ी हैरत से कहती है, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया, यहाँ पुलिस आई हुई है। हरविंदर कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। फिर अमनदीप कई और दोस्तों को कॉल करती है। गगनदीप का एक दोस्त कहता है, वो मुंदिल के पास गया है, मैंने उससे मना भी किया था। मुंदिल माहिल को फ़ोन किया जाता है। वो कहती है, मैंने कई महीनों से गगनदीप से मुलाकात नहीं की। अमनदीप उससे कहती है, हमें मालूम है कि वो तुम्हारे घर आया है, उसके दोस्त ने बताया है। मुंदिल लापरवाही से जवाब देती है,
अरे हाँ, आया था, लेकिन मैंने उसे घर में दाखिल होने नहीं दिया और वो बाहर से ही चला गया। हरविंदर की तंजिया हंसी और मुंदिल के मुंह से पहले ना और फिर हाँ सुनकर अमनदीप को बहुत शक हुआ और उसने पुलिस को बताया कि कुछ ठीक नहीं है, ये लोग साफ झूठ बोल रहे हैं। गगनदीप की माँ को उम्मीद थी कि शायद किसी ने गगन से मर्सिडीज मांगी होगी या उसकी गाड़ी चोरी कर ली होगी और वो बेखबर अभी भी कहीं पार्टी कर रहा होगा। मगर डिटेक्टिव्स को अंदेशा था कि लाश गगन की ही है, लेकिन बगैर टेस्टिंग के वो उसकी फैमिली को इतना बड़ा सदमा नहीं पहुंचा सकते थे। वो अमनदीप से भाई की कंघी और उसका टूथब्रश मांगते हैं ताकि इन चीज़ों के ज़रिए उसका DNA निकाल सकें और लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर सकें। DNA टेस्ट रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए डिटेक्टिव्स आस-पास मोहल्लों में घर घर जाकर पूछते हैं कि किसी ने कुछ देखा तो नहीं। कोई गवाह सामने नहीं आए, लेकिन खुशकिस्मती से लंदन में बहुत ज़्यादा CCTV कैमरेज मौजूद है और उस रात गली के कोने में लगे हुए एक कैमरे ने बहुत अहम मालूमात फराहम की। वीडियो में जब गाड़ी को आग लगा दी गई थी, 2 अफराद भागते हुए नजर आए और साफ वाज़े था कि उन दोनों में से एक ने पगड़ी पहनी रखी थी। डिटेक्टिव्स ने शहर की सड़कों पर मौजूद ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम को देखा, जिसमें हर गाड़ी की नंबर प्लेट रिकॉर्ड होती है। गाड़ी इस सड़क से उस सड़क तक गई, मोटरवे M25 और M23 पर नजर आई और ब्राइटन में जा रुकी। बेक्सली हीथ जहां गगनदीप रहता था और ब्राइटन के दरमियान फासला 1.5 घंटे गाड़ी का सफर है। डिटेक्टिव्स को गगनदीप की वीडियो मिलती है। वो गाड़ी सड़क पर पार्क करके एक दुकान में दाखिल होता है, दुकानदार से मुस्कुराते हुए बातचीत करता है, एक स्टफ टॉय भालू, फूलों का गुलदस्ता, चंद और तोहफे खरीदता है। अभी तक DNA टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने ये इंकिशाफ किया। विक्टिम के सर और जिस्म पर शदीद गहरी चोटें आई थी, चंद हड्डियां फ्रैक्चर हुई थी और सबसे अहम बात ये कि आग के धुएं को सांस लेने से उसकी मौत वारिद हुई थी। उसके हलक और फेफड़ों में कार्बन की कालक मिली, जिसका क्या मतलब है? जब गाड़ी को आग लगाई गई थी तो डिग्गी में विक्टिम जिंदा था। वो सब महसूस कर सकता था, जिल्द के जलने का दर्द, दम घुटने का दर्द, सांस रुकने का दर्द। उसकी मौत भयानक थी। 26 फरवरी 2011 रात के 9 बजे DNA रिजल्ट्स मिलते हैं। लाश गगनदीप सिंह की ही थी। डिटेक्टिव सिर्फ अमनदीप को राज में लेते हैं क्योंकि उन्हें पहले से बताया गया था कि ताजिंदर का दिल कमज़ोर है और उसे बेटी की मौत की खबर मार ही देगी। ताजिंदर को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और फिर गगनदीप के कत्ल का बताते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ का क्या हाल हुआ होगा। शौहर के कत्ल के सिर्फ 2 साल बाद उसने अपना लाडला बेटा भी खो दिया। अमनदीप को भी बहुत बड़ा धचका लगा। वो शौक में चली गई और 2 दिन तक ना बात कर सकी ना रो सकी। पुलिस अफसरान इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। ब्राइटन शहर के सारे कैमरों की फुटेज देखते हैं। CCTV फुटेज में आखिरी बार गगनदीप मुंदिल के घर के सामने नजर आता है। वीडियो 25 फरवरी की थी। रात के 11 बज रहे थे। मुंदिल का एक पड़ोसी पुलिस से राब्ता करता है, कहता है कि 11:20 पर उसने अपनी खिड़की से देखा था कि सड़क पर 2 मर्द अंधेरे में एक वजनी चीज उठाकर भाग रहे हैं। वो चीज एक दुवे ब्लैंकेट में लपटी हुई थी और दोनों आदमी उससे गाड़ी की डिग्गी में ठूंस रहे थे। डिटेक्टिव्स मुंदिल के फ्लैट में छापा मारते हैं, लेकिन मुंदिल माहिल वहां मौजूद नहीं थी। फ्लैट की तलाशी ली जाती है और फ्लैट के फर्श पर बहुत छोटे खून के कतरे नजर आते हैं। कमरे में एक कैमरे का स्टैंड मिलता है जिस पर खून और डेंट्स लगे हुए थे। मुंदिल के बिस्तर पर एक नई डुवे ब्लैंकेट बिछी हुई थी। ब्लैंकेट की रसीद डस्टबिन में पड़ी थी।
सीसीटीवी फुटेज के जरिए डिटेक्टिव्स को पता चला कि 25 फरवरी की शाम को मुंदिल माहिल ब्राइटन रेलवे स्टेशन गई थी। वो वहां 2 अफराद से मिली थी, हरविंदर शोकर और उसका एक डैरन पीटर्स नामी दोस्त। पुलिस का कहना था कि मुंदिल माहिल गगनदीप से की गई रेप की कोशिश को भूल नहीं सकी थी। मुंदिल ने हरविंदर शोकर को गगनदीप की हरकत के बारे में बताया था। हरविंदर भी मुंदिल का आशिक था और वो ये बात सुनकर तैश में आ गया था। मुंदिल और हरविंदर ने मिलकर फैसला किया कि गगनदीप से बदला लेना जरूरी है। मुंदिल ने उसे बात करने के बहाने घर पर बुलाया। गगनदीप खुशी खुशी वहां आ पहुंचा, ये सोचकर कि हम सुलह कर लेंगे, मुंदिल मुझे माफ कर देगी। फ्लैट में दाखिल होते ही उसे उनकी साजिश समझ आ गई। हरविंदर शोकर उसका वहां इंतजार कर रहा था और उसने फौरन हमला शुरू कर दिया, जोर का एक मुक्का मारा। मुंदिल ये देखकर अपने कमरे में जाकर छुप गई। 20 मिनट तक हरविंदर मुक्के, लातें और कैमरे के ट्राइपॉड से गगनदीप को मारता है। गगनदीप मुंदिल का नाम पुकारता है, उससे मदद मांगता है, लेकिन वो कमरे से नहीं निकलती। फिर हरविंदर अपने दोस्त डैरन पीटर्स के साथ मिलकर गगनदीप के हाथ और पांव बांधता है। मुंदिल के बेड की ब्लैंकेट में गगनदीप को लपेटकर उसे मर्सिडीज की डिग्गी में फेंक आता है। गाड़ी चलाकर वो दोनों ब्लैक हीथ की सुनसान गली में पार्क करते हैं। मर्सिडीज पर कई बोतलें पेट्रोल की उंडेल देते हैं, फिर दूर खड़े होकर माचिस फेंककर आग लगा देते हैं। 26 फरवरी 2011 रात के 9:40 पर मुंदिल माहिल को कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद हरविंदर सिंह शोकर और डैरन पीटर्स को भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। डैरन पीटर्स के घर की तलाशी लेते हुए डिटेक्टिव्स को कई पेट्रोल के खाली कैनिस्टर्स मिलते हैं। 13 मई 2011 गगनदीप सिंह की आखिरी रसूमात बहुत बड़े पैमाने पर वुलविच इलाके के गुरुद्वारा साहिब में तय पाई। बड़ी तादाद में लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की। आने वाले मेहमानों को हिदायत दी गई थी कि अगर वो चाहते हैं तो एक लाल गुलाब लेकर आएं, और सारे फूलों को जनाजे के कैरेज पर रख दिया गया। गगनदीप की मैयत को क्रीमेट किया गया और राख इंडिया भेज दी गई। दिसंबर 2011 लंदन के मशहूर ओल्ड बेली नामी कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। मुंदिल माहिल, हरविंदर सिंह शोकर और डैरन पीटर्स तीनों ने कत्ल का एतराफ नहीं किया। मुंदिल के डिफेंस वकील ने कहा कि मुंदिल ने उस रात गगनदीप पर कोई तशद्दुद नहीं किया था। वो सिर्फ चाहती थी कि हरविंदर उसे 1-2 थप्पड़ मारकर सबक सिखाए। हरविंदर के वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट का गगनदीप को कत्ल करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। पता नहीं बात इतनी आपे से बाहर क्यों हो गई। डैरन के वकील उसकी दिफा में कहते हैं कि उसने सिर्फ हरविंदर के कहने पर गगनदीप को गाड़ी की डिग्गी में डाला था। उसकी गगनदीप के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने गगनदीप को मारा पीटा नहीं था। प्रोसिक्यूटर आफ्ताब जाफर जी ने जरी से मुखातिब होते हुए कहा, ये हमला एक पहले से सोचा हुआ प्लान था, बदला लेने का जरिया। पहले गगनदीप को 20 मिनट तक मारा पीटा गया। हरविंदर, डैरन और मुंदिल अगर चाहते तो वो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने बेरहमी से गगनदीप की जान ले ली। इन तीनों में से कोई भी मासूम नहीं है। तकरीबन 3 माह बाद मुकदमा 24 फरवरी 2012 को ख़त्म हुआ। हरविंदर सिंह शोकर को कत्ल के जुर्म में 22 साल की कैद मिली। डैरन पीटर्स को 12 साल की कैद हुई और मुंदिल माहिल को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई।
मुंदिल माहिल की छोटी सी सज़ा का सुनकर आवाम ने ओल्ड बेली के सामने प्रोटेस्ट शुरू किए। नाइंसाफ़ी के नारे लगे, कहा गया कि वो भी कत्ल के जुर्म की हकदार थी, उससे भी 22 साल जेल में मिलने चाहिए थे। इस केस को दुनिया भर में हनी ट्रैप मर्डर से जाना जाता है। हनी ट्रैप उस जुर्म को कहते हैं, चाहे चोरी हो, डाका हो या कत्ल हो, जिसमें खूबसूरत लड़की किसी मर्द को फंसाती है, उसे कहीं बुलाती है और जब वो अकेला या कमज़ोर पड़ा होता है, लड़की के गुंडे दोस्त उस मर्द को लूटते हैं या मार देते हैं। दोस्तों, आपको ये बताती चलूँ कि मुंदिल माहिल ने 6 साल भी जेल में नहीं गुजारे। सन 2014 में उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा के बाद रिहा कर दिया गया था। आज़ाद होकर उसने किंग्स कॉलेज लंदन से फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। सन 2016 में मुंदिल ने एक पॉलिटिक्स के उभरते हुए सितारे वरिंदर सिंह बोला नामी पॉलिटिशियन से शादी कर ली है और अपने घर वालों के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रही है। रही बात अमनदीप और ताजिंदर की, उनका कहना है कि उनकी जिंदगी एक ही जगह रुक गई है, उन्हें आगे कुछ अच्छा होते हुए नजर नहीं आता। ताजिंदर को 100% यकीन है कि गगनदीप ने मुंदिल के साथ ज्यादती करने की कोशिश नहीं की होगी। वो बेशरम लड़का नहीं था, इतनी नीची हरकत नहीं कर सकता था। अमनदीप और ताजिंदर ने गगनदीप का कमरा वैसे की वैसा ही रखा है, अलबत्ता उसकी 2-3 और फोटोज दीवारों पर लगी हैं। अपने बैक्सली हीथ के घर में उन दोनों ने गार्डन में गगनदीप के नाम का मज़ार बना लिया है, जहां वो अक्सर जाकर बैठती हैं और अपनी सोचों में, अपनी यादों में गुम हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी गगनदीप सिंह की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना